Prime Minister is not bothered. When he go to the first time in Ganga and fill the form for the first election, he say, मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है और अब मैं गंगा के सारे काम करूंगा, मुझे गंगा से लेना नहीं है, गंगा को देना ही देना है। पर अब उनसे कोई पूछे कि उन्होंने गंगा को क्या दिया? मेरी माँ गंगा की, जो जिसे हम गंगा जी कहते हैं, उसका जल गोमुख से चलकर गंगा सागर तक पहुंचना चाहिए। फरक्का बैराज गंगा का हत्यारा है। ये लिंकिंग ऑफ रिवर, काल और बाढ़ दोनों को बढ़ाता है। सरकारें जो कह रही हैं उसका उल्टा है। मैंने अपने पिछले 50 सालों के काम में 23 छोटी नदियों को रिजुनेट किया है जो पेरेनियल हैं, कि हिमालय को हरियाली चाहिए, हिमालय को टनल नहीं चाहिए, हिमालय को डैम नहीं चाहिए, हिमालय को बड़े बड़े ऑल वेदर रोड नहीं चाहिए। Welcome to the Plural Special Show on the issue of India's independence and India's progress on developmental sector for the last 8 decades. We call this series India at 79, Freedom at Midnight, Lost in Daylight. Have we lost the spirit of freedom which we achieved 80 years back in the midnight? Have we lost it or we haven't? Have we progressed well? So today I have with me a person who is perhaps one of the best person in India right now to talk about these issues. Dr. Rajendra Singh, the waterman of India, the waterman of the world, the person who took up the issues of water when nobody was talking about climate change, when nobody was talking about environmental issues. Dr. Singh, welcome to the show. And it is such a pleasure and privilege to have you in my show and talk about the issues which none else than you can elaborate more specifically. Let me start with a very straight question. India has got independence on 1947, 15th August midnight. And since then, almost 80 years, 79 years to be specific, has gone. How you see India's developmental policy, particularly in the issue of environment, has progressed so far? Dr. Singh. After independence, my government or my civil society, they both is interested only in economic profit, and they not bother about the real common future, and they not bother about the long-term profit. They only thinking about the short-term profit, and for the short-term profit, they creating a economic infrastructure, and that economic infrastructure only bother creating more infrastructure, and they don't bother about the displacement of indigenous knowledge system in India, and they are really not bothered about the destruction of the nature. And due to the continuous destruction on the nature in India, we are facing disaster. So, due to the displacement of our real knowledge system, destruction start in a big way, and that destruction creating a real disaster like drought, flood, and so many problems with ocean. So this type of the disaster increasing this because our whole activity of development inbuilt the extraction of nature and pollution of the water, air, soil, and the encroachment on common property like forest, like rivers, like oceans. So these the important reason
we lose very much and we not gain equally. Let me interrupt you and go to the specific part. You have mentioned that how generally the political system in India over the last 8 decades has failed the developmental issue. You said that they have gone for the short-term benefit and not really considered the long-term benefit that they should have. So let me come into the specific issue. Say water. That's your area. So how you see this water policy and the way the water being the river, the groundwater being encroached, being abused, and now we are talking about that the resources are going. How you see that? The water policy or river policy, these is a really not benefited to the nature or not benefited to the human being, not fulfill the need of human being, and this policy is really not concerned and not consciousness about the nature. About the nature, if no consciousness, so the nature is hurting, nature is moving, die. So after this policy in India, the water policy, they never give the right on water to the community. They give the right to the corporate. So the India is an ideal model of this world. And after 97 or continuously they are changing the water policy, but not a single policy who is bothered about the community-driven decentralized water management. Why? Because if they are giving this way to the management of water, so the corporate can't do the business of water. So Right. the corporate, they not bother about the community. So no community right on water for management of the water. So due to this due to transparency, I can say, for the corporate. So this is a real disaster. Real Now disaster. these policy not bother about these policy is a disaster. Why? Because no policy who bother about the right of. No. I was coming on to that. So you feel the current water policy or the way that we are dealing with the water is an absolute disaster, and you feel that it's not for the community. That's what you were trying to say? Yes. I am saying very clearly, no doubt, no ambiguity. These policies, the disaster, they are not a single policy who is bothered about the community-driven decentralized water management. And you think the same was happening in the Congress era, and the same thing is now happening in the BJP era. So they are consistent with their policy that not for the community. So it's same from all political parties. I can say now is more, but before they are listening to the people sometime. Now is the government is not listening. If we are saying, we are suggesting something, nobody listening us. So if I can say this government is not conscious about the community water right or the river right. Okay. Now let us come to river Ganga to start with. And I know that you are so very attached to the whole Ganga issue. And you told me once that hardly any water comes from Gangotri to Ganga Sagar. And there are several disputes within the states. The Farakka barrage issue is there. There are other issues that upstream states are taking, but hardly there is any discussion among the states. There is a formal Ganga Basin Authority, but that hardly works. No meeting. So how you see the government role in Ganga in kind of rejuvenating or resurrecting or protecting Ganga? How you see that? You know, the era of the Congress,
every 6 months, the National River Basin Authority meeting organized. But in last 11 years, no, not a single meeting of the authority, or maybe one or two sometime, but we don't know. I can say one thing, if my government is not bothered about the ecological flow and environmental flow of the river Ganga, so they can't make the clean Ganga. The clean Ganga possible only the continuous flow. If we are giving the continuous flow in Ganga, so we can make a clean Ganga. But never discussion of the continuous flow in Ganga. Our Vice President, Professor G.D. Agrawal, he done fast tapasya for Ganga, Mother Ganga, and he 111 days continuously, and we are fully involved with every time we are giving the all information to the government. I meet 5 times to him, but nobody bothered. The Prime Minister is not bothered, and when he died, so he written a tweet. But the Prime Minister has owned from Varanasi, which is the epitome of Ganga. He offered puja after winning the election. Yes, when he go to the first time in Ganga and fill the form for the first election, he say, मैं गंगा का बेटा हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है और अब मैं गंगा के सारे काम करूंगा, मुझे गंगा से लेना नहीं है, गंगा को देना ही देना है। पर अब उनसे कोई पूछे कि उन्होंने गंगा को क्या दिया? उन्होंने गंगा को केवल गंगा की बीमारी है हृदय रोग की, गंगा की बीमारी है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फ्लो की, और उसके घाट बनवाए जा रहे हैं, कहीं कहीं एसटीपी लगाए जा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी माँ गंगा हृदय रोग की रोगी है, लेकिन उसका जो इलाज करने वाला डॉक्टर है वो दांतों का है, डेंटिस्ट है, वो उसका जबड़ा चढ़ा रहा है। और कभी कभी गंगा को ब्यूटी पार्लर की दुकान पे भेज देते हैं कि उसके बाल संवार दीजिए, उसके किनारों पर झाड़ू लगा दीजिए। बीमारी क्या है गंगा की, उसकी कोई चिंता किसी को नहीं है। लेकिन इलाज में तो बहुत खर्चा हो रहा है। खर्चा हो रहा है और मेरी माँ और ज्यादा बीमार हो रही है। केवल खर्चा हो रहा है उतना नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर है वो तो ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर को डॉक्टर बनाया है, और वो सब जहां से आए हैं तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये ब्यूटी पार्लर कहाँ से आए हैं। सब गंगा के किनारे जो काम करने वाले लोग हैं, ये सब ब्यूटी पार्लर्स हैं। वो केवल कहीं घाट बनाते हैं, कहीं उसका केवल ब्यूटिफिकेशन है, गंगा की बीमारी का इलाज नहीं है। इसलिए गंगा और ज्यादा बीमार हो रही है, गंगा और ज्यादा पॉल्यूट हो रही है, गंगा और ज्यादा बीमार, गंगा की बीमारी बढ़ती जा रही है। Absolutely. Dr. Singh, in this you said that Ganga has one kind of ailments and they are treating it differently. So I think that's a very, very good description of what's happening today in India about Ganga. Now, one major issue of Ganga is the Farakka, very contentious issue. One time, I know that the Chief Minister, still the Chief Minister of Bihar, advocated that the Farakka should be broken down. I think you and few others have taken a helicopter trip and saw how it is. So how do you see that Farakka? Because this is very difficult to undo what Farakka has done. So what's your thought and what's your prescription on Farakka? देखिए, मेरी माँ गंगा की, जिसे हम गंगा जी कहते हैं, उसका जल गोमुख से चलकर गंगा सागर तक पहुंचना चाहिए। बीच बीच में ये जो इन्होंने बैराज बनाए हैं,
ये उसकी सिल्ट को, उसका जो वास्तविक गुण है, उसका जो बायोफास है, उसको बीच बीच में रोक देते हैं फरक्का बैराज बना के। फरक्का बैराज गंगा का हत्यारा है। फरक्का बैराज गंगा में बहुत भयानक तरह के कटाव करवाता है और गंगा को एक तरह से सिल्ट करके पूरी बिहार को डुबोता है। बिहार में उसका जो बैक वाटर है गंगा फरक्का का, वो बहुत पीछे तक जाके पूरा बिहार में बाढ़ लेके आता है। ये नदी को यदि आप आजादी नहीं देंगे तो आपकी आजादी सुरक्षित नहीं रह सकती। जैसे हमें आजादी चाहिए, वैसे ही मेरी माँ गंगा को आजादी चाहिए। उसको उसको हिंदी में कहते हैं अविरलता। अविरलता, हमारे हमारे सारे राजनेता अविरलता की एडवोकेसी करते हैं, पर कभी भी अविरलता के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। तो गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता तभी संभव होगी जब आप ये जो गंगा पर बनने वाले बांध हैं और खासकर फरक्का बैराज है, इन बैराज को नहीं हटाएंगे। ये बैराज हटाने से नदी का जो फ्लो है, वो जो उसका सिल्ट, जहां उसकी जरूरत है। अरे सारा सुंदरबन घटता जा रहा है, कटता जा रहा है। तो ये इसलिए कट रहा है कि गंगा का जो सिल्ट था वो वहां जाके डिपॉजिट होता था, उसको बढ़ाता था। और अब फरक्का बनने के बाद गंगा में दोनों तरफ कटान है। गांव के गांव गंगा में उस बहाव में नीचे गिर गिर रहे हैं, कट रहे हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों गांव देखे जिनमें फरक्का बैराज के कारण पानी के जो फ्लो है, उनके जो इन्वायरमेंटल फ्लो है, वो चेंज हो गए हैं। और उनके चेंज होने से गंगा के दोनों तटों में कटाव है। तो व्हाट्स योर प्रेस्क्रिप्शन नाउ? आप तो फरक्का बैरेज तो डिसमेंटल करना तो कोई रियलिस्टिक सोल्यूशन है नहीं शायद। तो व्हाट इज योर सजेशन? हाउ वी शुड गो अबाउट? मेरा मेरा सजेशन ये है, मैंने कभी नहीं कहा, किसी डैम को भी नहीं कहा कि भाई उनको हटा दो। मेरा कहना है कि हर नदी को उसका राइट है कि उसको उसका इन्वायरमेंटल फ्लो इंश्योर हो, उसको, जिससे वो उसके जो सिल्ट है, जो पानी के गुण है, जिनको जहां जाना चाहिए वहां वो जा सके पानी के साथ बहकर। तो उसमें जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा और गंगा के फ्लो में जो वेग आएगा उससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तेज होगी और उसमें मछली जो अब ऊपर नहीं जाती है, वो मछलियां उसमें रुक जाती हैं नीचे, वो भी ऊपर उत्तरकाशी तक जा सकती हैं। बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं जो पानी के गंगा में विपरीत प्रवाह में बह जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन फरक्का बैराज बनने के कारण इन मछलियों का जो गति है वो भी रुक गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हाँ, कि यदि भारत को सचमुच एक एक स्वावलंबी, गौरवशाली, स्वाभिमानी राष्ट्र बनना है तो फिर माँ गंगा को आजादी दे दो। और माँ गंगा की आजादी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बांध तोड़ के दो, हाँ उसकी बहुत तरह की तकनीक, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी हम काम में ले सकते हैं, विज्ञान को, जिससे गंगा को इन्वायरमेंटल फ्लो इंश्योर किए जा सकते हैं और गंगा भी स्वस्थ रहेगी और कटाव नहीं होंगे। अभी तो गंगा में नीचे के पोर्शन में बहुत बड़े टापू बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े वो बन गए हैं, चर बन गए हैं। ये जो बने हैं इससे सिल्टेड हो गए। बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए गंगा को मैं हमेशा कहता हूं कि उसको, उसका प्रवाह, उसकी जमीन का और उसको
ये तीनों अधिकार माँ गंगा को दिए जाने चाहिए। जब ये तीनों अधिकार माँ गंगा को मिलेंगे तो मेरी माँ गंगा आजाद हो जाएगी। So basically, you are suggesting for desiltation and better water flow. अभी तो फरक्का बैरेज का ज्यादा तक जो एंट्री पॉइंट है वो क्लोज्ड है, वो सील्टेड हो गए, वो कोई 2 3 4 से निकालते हैं वाटर. So you are saying, you are suggesting that there should be more desiltation and dredging and more better flow of Ganges water. That's what you are saying. ड्रेजिंग की जरूरत है, ड्रेजिंग की जरूरत है। ड्रेजिंग होने से पानी का जो फ्लो उसको ठीक किया जा सकता है, और फिर जो उसके कुछ गेट हैं वो ठीक साइंटिफिक ढंग से खोलने का, पानी की उपलब्धता के आधार पर उसका ठीक से एक वैज्ञानिक तरीके से, जल वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है, और उस प्रबंधन की व्यवस्था संभव है, पर आज वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कोई एलिमेंट नहीं हो रहा है. आई थिंक अनदर इशू दैट दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इज पुशिंग इज द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जो प्रपोजल, वो पुराना प्रपोजल है लेकिन वो घुमा घुमा के आते हैं, तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, लिंकिंग ऑफ करप्शन एंड लिंकिंग ऑफ पॉल्यूशन है वेरी क्लियर। ये एक तरह से नदियों को जोड़ने का काम नेचर खुद करती है। जहां नेचर जिस नदी को दूसरी नदी से जोड़ती है वो उसका अपने फ्लो के हिसाब से लिंक होता है, लेकिन हमारी सरकारें अब नदियों के फ्लो को अपने चहेतों को पानी देने के लिए और अपने चहेते बड़े कॉरपोरेट को पैसा देने के लिए ये लिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल न्यायिक नहीं है, और ये लिंकिंग ऑफ रिवर कोई भी मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरे राज्य में ज्यादा पानी है, आप ये पानी अपने राज्य में ले जाओ। तो यदि हमें लिंकिंग ऑफ रिवर के जो स्लोगन है वो ये है कि ड्राउट एंड फ्लड फ्री कंट्री बनाना है, और वो लिंकिंग ऑफ रिवर से हो जाए, मैं कहता हूं कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, आज तक नहीं। मैंने दुनिया के 150 से ज्यादा कंट्री देखी। मैं अभी समरकंद होके आया था। समरकंद की जो नदी है उनको जब ये रशिया का काल था तो उनको जोड़कर कपास की खेती के लिए पानी को लेके गए 1000 किलोमीटर दूर। अब उनका समुद्र भी सूख गया और नदी भी सूख गई। अब ज्यादा भयानक अकाल है वहां, इसलिए ये लिंकिंग ऑफ रिवर काल और बाढ़ दोनों को बढ़ाता है। सरकारें जो कह रही हैं उसका उल्टा है। ये उदाहरण मैं दुनिया में बहुत सारी जगह के दे सकता हूं कि जहां पर लिंकिंग ऑफ रिवर और डाइवर्जन ऑफ द रिवर किया गया है वहां पर बाढ़ और सुखाड़ दोनों बढ़े हैं, वहां की क्राइसिस बढ़ी है। एक भी उदाहरण नहीं है दुनिया में जो ये कह सके कि हमने सफलतापूर्वक इस काम में सिद्धि प्राप्त की है। मैं कहता हूं कि लिंकिंग ऑफ रिवर नहीं, लिंकिंग आवर हेड, आवर हार्ट एंड आवर हैंड विद रिवर होना चाहिए। जिस दिन भारत के लोगों का दिल, दिमाग और हाथ नदियों के साथ जुड़ जाएगा उस दिन भारत की सारी नदियां शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगेंगी। मैंने अपने पिछले 50 सालों के काम में 23 छोटी नदियों को रिजुनेट किया है जो पेरेनियल हैं, शुद्ध सदा नीरा होकर बहती हैं।
मेरे जैसा मामूली आदमी यदि ये काम कर सकता है तो भारत सरकार और राज्य की सरकारें क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो लालची हैं और लालच को बढ़ावा देने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करती हैं। हमें तो किसी वोटर को खुश नहीं करना, हमें तो नदी को खुश करना है, नदी को शुद्ध सदा नीरा बनाना है। इसलिए हम नदियों को पुनर्जीवित कर पाए। हमारी सरकारें अपने वोटर को खुश करने के लिए, अपने कॉर्पोरेट को जेब गरम करने के लिए ये नदी जोड़ का काम कर रही है। नदी जोड़ कदाचित हमारे देश के लिए शुभ नहीं है। I think Rajendra ji, you have reminded me of Sundarlal Bahuguna ji. When many years back I took an interview of him, Sundarlal Bahuguna ji, he said the same thing that I asked him that when you started this environment work in 50s, nobody was talking about climate change. तो आप जब पेड़ का जो काम स्टार्ट किया है तो उन्होंने बोला the problem is that we used to link our head and brain and heart. So आपका बात सुन के मैं वो जो पुराना वाला सुंदरलाल बहुगुणा जी का बात आ गए सामने में. लेकिन one thing another I want to ask you, even that's also Bahuguna ji once proposed, is we don't have any Himalaya policy. So all these rivers are coming from Himalaya in India and then the other countries in the Nepal and all that in the South Asia. The South Asia is kind of surviving on the rivers coming from the water coming from our water tower. But the government of India never ever has any Himalaya policy. They are opposing. There's hydropowers. You can see what's happening in Uttarkashi. You can see everything is happening around. तो आप क्या लगता है कि ये हिमालय पॉलिसी होने चाहिए? तो हिमालय पॉलिसी की बहुत जरूरत है। नेहरू जी के जमाने में एक संस्था बनी थी हिमालय के लिए। पूरी 9 देशों ने मिलकर उस संस्था को बनाया था, लेकिन उसका हेडक्वार्टर नेपाल में है। मेरा कहना यह है कि भारत अपने हिमालय की यदि एक नीति बनाए तो पूरे एशिया के हिमालय से जुड़े हुए सभी देशों को सीख दे सकता है। लेकिन वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ इसलिए कि भारत ने अपनी हिमालय की एक मूल नीति रीति नहीं बनाई जिससे हिमालय हरा भरा रह सके। मैं हमेशा कहता हूं, हिमालय की हरियाली और नदियों की शुद्धता तभी संभव होगी जब हिमालय स्वस्थ होगा तो भारत की नदियां स्वस्थ होंगी। इसलिए हम हिमालय में हरियाली बढ़ाएं और नदियों की शुद्धता बनाएं। यही भारत के स्वस्थ और स्वाभिमान और समृद्ध राष्ट्र के लक्षण होते हैं। यदि हम हिमालय को, जो हमारी सुरक्षा का हमारा एक तरह से मुकुट है, उसको उसकी चिंता नहीं करेंगे तो ये हिमालय अब जिस तरह से हर साल कई घटनाएं होती हैं, हर साल कई लोग मरते हैं, हर साल कई नदियां सड़कें सब टूटती हैं, शहर उजड़ते हैं, गांव दबते हैं, इसलिए कि हमारी हिमालय की कोई नीति रीति नहीं है। हाँ, हमने 2006 में, 7 में और 8 में बराबर कहा था कि हिमालय को हरियाली चाहिए, हिमालय को टनल नहीं चाहिए, हिमालय को डैम नहीं चाहिए, हिमालय को बड़े बड़े ऑल वेदर रोड नहीं चाहिए, हिमालय को चाहिए हरियाली। और वो हरियाली इसलिए बची रही थी हिमालय में क्योंकि हिमालय हमारा तीर्थ क्षेत्र था। अब हिमालय हमारा तीर्थ क्षेत्र नहीं है, अब वो हमारा पर्यटन क्षेत्र हो गया है। तो जब भारत में तीर्थ को पर्यटन में, जब भारत को पिलग्रिम को टूरिज्म में बदलते हैं तो जो हमारे सम्मान की, श्रद्धा की, प्रेम की, निष्ठा की जगह है वो हमारी भोग की वस्तु बन जाती है। और जब कोई भोग की वस्तु बनती है तो वो नष्ट होती है
और दूसरों को भी नष्ट करती है। आज हिमालय का यही हाल है। हिमालय अब हमारा पिलग्रिम तीर्थ नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्र हो गया। और जब से वो पर्यटन क्षेत्र बनना शुरू हुआ तब से हिमालय टूट रहा है। और जब हिमालय टूटता है तो भारत को मजबूत होना शंकाएं पैदा करता है। I think so well said. And my final question, you spoke about how the governments over the years, over the decades, are not being concerned about the issue of environment in general, water in particular, rivers. You also mentioned that the current government in the last decade or so is even less concerned about the issue of environment. But Hamara civil society, now we have to find out a way out. You are leading the civil society on these issues in the country. How you see the civil society working on that, and how you see the future of it? देखो, जब नदियां अब सिविल सोसाइटी ये मानती है कि ये सरकार की है क्योंकि उसके लिए सरकार का कानून है, तो फिर सिविल सोसाइटी उसकी बॉदर नहीं करती। सिविल सोसाइटी बॉदर करती है अपनी वस्तु, अपने जीवन की, अपनी जीविका की, अपनी जमीन। आज हमारी भारत की नदियां सरकारों की हो गई, अब वो सिविल सोसाइटी की नहीं है। सरकार अपना मुंह छुपाने के लिए हमेशा ये कहती रहती है कि नदियों को समाज संभाले, पर कहती है वो। एक इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल केवल ये कहता कहता चला गया इस दुनिया से कि आप इन नदियों का प्रबंधन मां गंगा के भक्तों के हाथ में दे दो। और भक्तों के हाथ में फ्रॉड संत नहीं, आजकल फ्रॉड संत सरकारों से चिपके रहते हैं। वो संत जिनको सरकारों की चिंता ना हो, वो संत जो सरकारों से डरते ना हो, ऐसे संत चाहिए जो सरकार से अपना लालच पूरा ना करते हो और सरकारों से डरते ना हो। आज सरकारों से डरने वाले, अपना लालच पूरा करने वाले सरकारों के चारों तरफ संत ही संत दिखते हैं, लेकिन एक भी संत उनमें ऐसा नहीं है जो सच्ची बात सरकार से कह सकता हो। बस जो बातें सरकार को पसंद है वो बोलते हैं। हम जीडी अग्रवाल जैसा संत जो बोल रहा था कि मां गंगा को गंगा का अधिकार दे दो, उसको उसकी अविरलता और निर्मलता का अधिकार दे दो, मां गंगा को टनल में मत बांधो, मां गंगा को बांधो में मत बांधो, मां गंगा में खनन मत करो, और मां गंगा में अब कोई टनल और कोई बांध नहीं बनना चाहिए। उसकी एक नहीं सुनी। I am also hearing you that in West Bengal, in Kolkata, the original flow of Ganga has been hijacked in several places, as you know. And also, some time back, there was a proposal from one officials or some officials of state government to put flow of Ganga within a tunnel. Unbelievable. And then I think the media and others, we have all written about it, and that got stopped. So the mindset, the official mindset about Ganga, I think there's a problem in that. Yeah. You are right. You are exactly. अभी जो हमारा माइंडसेट है वो माइंडसेट मां गंगा की हेल्थ की चिंता नहीं करता, वो दिखावे की चिंता करता है, वो पूजा पाठ की चिंता करता है, वो मां गंगा स्वस्थ रहें इसके लिए काम नहीं करता, दिखावा करता है, झाड़ू लगाता है, ये करता है, वो करता है। मेरा कहना ये है। Final question, Rajendra ji, is that in few other countries, rivers are being taken as a living entity. I know you are also have started a movement to
to ensure that Gangaji and also other rivers should get a living entity. So would you like to speak on that? That what's your thought on that? देखिए, हम दुनिया के गुरु बनना चाहते हैं और दुनिया के गुरु जिस चीज में थे उसको नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया के गुरु थे सत्य बोलने में, हम दुनिया के गुरु थे अहिंसक तरीके से सबको प्यार से जीने में, और हमारे इस लिखित संविधान से भी पहले समाज के अलिखित संविधान में गंगा को लिविंग आइडेंटिटी दी गई थी। माँ कहा गया था, माँ कहते थे। माँ का मतलब तो लिविंग आइडेंटिटी है, हम लिविंग हैं, हमारी माँ भी लिविंग है। लेकिन हमने अब उसकी बात मानना छोड़ दिया। हमारी न्यायपालिका ने, कोर्ट ने भी उसको मान लिया। राजीव शर्मा, जस्टिस राजीव शर्मा ने हाई कोर्ट नैनीताल में इस बात के लिए अपनी ऑर्डर जजमेंट दी, लेकिन उसको भी इग्नोर कर दिया। आप जानते हैं, मोरी जाति के आदिवासी वांगानुई नदी न्यूजीलैंड में 170 साल से उसकी लिविंग आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे थे और आखिर सरकार ने उसको मान लिया, कोर्ट ने भी मान लिया। हमारी सरकार जो इतने दिनों से 80 सालों से आजाद सरकार है, वो यदि माँ गंगा को माँ का अधिकार नहीं देती तो फिर क्या होगा? फिर कैसे हम दुनिया के गुरु हो सकते हैं? जब हम अपनी माँ का ही अधिकार छीन लेते हैं, जब हम अपनी माँ का ही सम्मान नहीं करते, तो हम किसका सम्मान करेंगे? इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, 25 अगस्त को हमने माँ गंगा की लिविंग आइडेंटिटी के लिए दिल्ली में एक संवाद रखा है। उस संवाद में आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं और चाहूंगा कि यदि आप माँ गंगा को माँ कहते हैं तो माँ गंगा के साथ माँ जैसा व्यवहार, माँ जैसा सदाचार, और माँ यदि बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, तो उसका इलाज करवाना, उसका ठीक इलाज हो, उसकी चिंता करना, वो है लिविंग आइडेंटिटी। इसलिए इस संवाद को बढ़ा। It's such a pleasure and privilege to speak to you as usual. And आपका जो मानना है that the way the free India has dealt with its river, we are actually made the rivers prisoners in free India. We haven't allowed them to grow and to flow the way they should have been. And now we are feeling the consequences. Now we are finding the consequences, what's happening in different parts of the country with this climate change and increasing the impact. So I just hope, I just hope that once we are coming out of this with whatever we discussed with you, it would reach some of the policymakers and kind of trigger them for some action. And I know the people like you will fight on and on and on, whatever the government does. And we all just hope that it kind of takes us to a point where the country survives. Thank you for your time, Rajendra Singh. It's such a pleasure and privilege to speak with you. And we will keep on talking. Thank you. Thank you very much, Vasu. Thank you very much. Thank you. Thank you.